Very good afternoon to all of you. This is Abhilashan Hata, your social science teacher. So, class, today we all are going to continue our chapter number 5th of your book. The name of the chapter is Rulers and Buildings. In our last class, we discussed about we discussed about building temples, mosques, and temples. Why it was important for the rajas and sultans to build mosques, temples, or palaces, or buildings, etc. And why were even we talked about even we talked about why were temples targeted because kings wanted to show their power, right? They wanted to demonstrate their power. That's why what they did, they targeted temples. So now why were temples targeted? Because kings built temples to demonstrate their devotion to God and their power and wealth. It is not surprising that when they attacked one another's kingdom, they often targeted these buildings. In the early 9th century, when the Pandyan king Srimara Srivallabha invaded Sri Lanka and defeated the king Senavan, the Buddhist monk and chronicler Dhammakirti noted, he removed all the valuables. The statue of the Buddha made entirely of gold in the jewel palace and the golden images in the various monasteries, all these he seized. The blow to the pride of Sinhalese ruler had to be avenged, and the next Sinhalese ruler, Sena II, ordered his general to invade Madurai, the capital of the Pandyas. The Buddhist chronicler noted that the expedition made a special effort to find and restore the gold statue of the Buddha. So now, as you all know, we talked about it. Kings build temples to demonstrate their power, to show their power, wealth, devotion to God, etc. So obviously, it is not surprising why one Raja attacked another Raja's kingdom or kingdoms. They targeted those buildings, temples or palaces, especially temples, mosques, forts, etc. Because they want kings built. They had a very special place in the heart of the people, in the heart of the king. Okay, so now 19 एक example आपके book में given है. Pandyan king Srimara Srivallabha, he invaded Sri Lanka. Invaded matlab capture, to capture. He invaded Sri Lanka and he defeated Sena I. He was the king of the Sri Lanka, and at that time, Srimara Srivallabha, he invaded Sri Lanka and he defeated Sena I. So now the Buddhist Buddhist एक जो follower होते हैं, जो Buddhist साधु होते हैं, हम बोल सकते हैं वो, and chronicler historian को बोलते हैं हम, ठीक है, person who writes history. Chronicler is Dhammakirti. What was the name of that Buddhist monk? Dhammakirti. He noted that जितने भी valuables होते हैं जो किंग के पैलेस में, जो भी किंग के मंदिर में जो भी किंग ने बनवाया है, वो उन वैल्यूएबल्स को रिमूव कर दिया जाता है. बुद्धा की जो स्टैच्यू थी उसको भी हटा दिया गया है. जितने भी गोल्डन इमेजेस थे उन सबको कैप्चर कर लिया गया है. आफ्टर दैट ये सारी चीजें जब कैप्चर कर ली गई ना, तो इससे जो प्राइड था, जो एक सिन्हालीज रूलर का जो प्राइड था, सिन्हालीज इज द लैंग्वेज, it is spoken in श्रीलंका, ठीक है. श्रीलंका में सिन्हालीज लैंग्वेज बोली जाती है. और सिन्हाला रूलर्स जो थे उन्होंने क्या किया कि उनका जो प्राइड रहा तो वो उससे कम हो चुका था जब ये जितने भी गोल्डन इमेजेस या मोनेस्ट्रीज वगैरह सीज हो गई थी. तो फिर सेना टू ने क्या किया, सेना टू जो थे, सेना वन के बेटे थे, उन्होंने ऑर्डर किया कि हमें मदुराई को क्या करना है, इन्वेड करना है. ही
ordered his general to invade Madurai, and Madurai was the capital of Pandyas. Pandyas की capital city था Madurai. So बुद्धिस्ट क्रॉनिकलर ने ये चीज नोट की कि एक्सपीडिशन मतलब क्या होता है, टू ट्रैवल फॉर द स्पेसिफिक पर्पस. जब आप किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ट्रैवल करते हो ना, तो उससे हम एक्सपीडिशन बोलते हैं. सो द बुद्धिस्ट क्रॉनिकलर नोटेड दैट द एक्सपीडिशन मेड अ स्पेशल एफर्ट टू फाइंड एंड रिस्टोर द गोल्ड स्टैच्यू ऑफ द बुद्धा. कि अगर हम इसी पर्पस के लिए, कि हम एक इसी स्पेशल पर्पस के लिए जगह जगह वेंडर करें, मूव करेंगे, और हम अगर एफर्ट्स लगाएंगे तो मे बी हम जो गोल्ड स्टैच्यू है बुद्धा की उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. Similarly, in the early 11th century, when the Chola king Rajendra I built a Shiva temple in his capital, he filled it with prized statues seized from defeated rulers. An incomplete list included a sun pedestal from the Cholukyas, a Ganesha statue, and several statues of Durga, a Nandi statue from the eastern Cholukyas, an image of Bhairava and Bhairavi from the Kalingas of Odisha, and Kali statue from the Palace of Bengal. Now similarly 11th century में क्या देखा जाता है, चोला किंग राजेंद्र I थे, उन्होंने शिवा टेम्पल बनवाया था उनके कैपिटल में, और जितने भी प्राइज्ड स्टैच्यूज थे, मतलब कि जितने भी स्टैच्यूज उन्होंने सीज किए थे ना डिफरेंट प्लेसेस से, डिफरेंट रूलर्स को डिफीट करके, उन सब स्टैच्यूज को उन्होंने क्या कर दिया था, वहां पे रखा था. जिसमें क्या था कि एक सन पेडेस्टल था, चाणक्यास के टाइम का सन पेडेस्टल, गणेश स्टैच्यू था, दुर्गा के स्टैच्यूज थे बहुत सारे, नंदी स्टैच्यू, भैरवी का स्टैच्यू वो उड़ीसा से थे, काली स्टैच्यू था पलास, बंगाल के पलास से. तो ये सब उन्होंने इंक्लूड किया, और ये अभी जो है ये लिस्ट इनकम्प्लीट है, हमें हिस्ट्री में इतना ही लिस्ट का पता चल पाया. So another example, Sultan Muhammad of Ghazni was a contemporary of Rajendra I. During his campaigns in the subcontinent, he attacked the temples of defeated kings and looted their wealth and idols. Sultan Muhammad was not a very prominent or important ruler at that time, but by destroying temples, especially the one at Somnath, he tried to win credit as a great hero of Islam. In the political culture of the Middle Ages, most rulers displayed their political might and military success by attacking and looting the places of worship of defeated rulers. अब सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी जो थे वो भी राजेंद्र I के एरा से ही थे. कंटेम्पररी मीन्स होते हैं उसी एरा से, उसी टाइम से थे. सो उनके कैंपेन्स के टाइम पे उन्होंने काफी टेम्पल्स को अटैक किया, उन्होंने काफी किंग्स को जो है डिफीट किया, काफी उनके खजानों को, आइडल्स को, वेल्थ को उन्होंने लूटा. बट बहुत इंपॉर्टेंट रूलर नहीं थे उस टाइम पे. बट जब उन्होंने सोमनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया, ठीक है, तो वो क्या क्रेडिट लेना चाह रहे थे, he tried to win credit as a great hero of Islam. इस्लाम के ग्रेट हीरो का क्रेडिट लेना चाह रहे थे. एंड हम जब पॉलिटिकल कल्चर में देखते हैं कि ये जितनी भी पॉलिटिकल फेम है, पॉलिटिकल माइट, सक्सेस जो है, मिलिट्री सक्सेस जो है, अटैक करके, लूट के, स्पेशली हमें यही देखने को मिलता है कि प्लेसेस को लूट के ही क्या किया गया है, या फिर स्पेशली जहाँ पे रूलर्स वर्शिप करते हैं उन प्लेसेस को लूट के, उन प्लेसेस को इन्वेट करके ही अपनी सक्सेस को रिप्रेजेंट किया करते थे. ठीक है, सो जस्ट लुक एट दिस इज मुगल चाहरबाग. चाहर मीन्स होता है फोर, ठीक है, मुगल फोर गार्डन्स भी बोला जाता है. तो ये वाला जो फर्स्ट इमेज देख रहे हो, क्या ये स्केचिंग देख रहे हो, द चाहरबाग इन हुमायूं टॉम्स दिल्ली 1562 to 1571. दिल्ली के हुमायूं टॉम का चाहरबाग है. नेक्स्ट टेरेस चाहरबाग एट शालीमार गार्डन्स, कश्मीर 1620 एंड 1634. टेरेस मतलब छत के ऊपर ये चाहरबाग है. चाहर का मतलब होता है ये फोर प्लेसेस, ठीक है. फिर हम देखते हैं द चाहरबाग अडैप्टेड एज अ रिवर फ्रंट गेट गार्डन एट लाल महल बाड़ी 1637. जो ये फ्रंट आप देख रहे हो वो क्या है, रिवर फ्रंट है. उसके बाद ऊपर देखो चार गार्डन्स अलग अलग ऐसे चार रास्तों से निकलते हैं, बीच से ऐसे चार प्लस का सिंबल बन रहा है. फोर डिफरेंट स्मॉल गार्डन्स हमें देखने को मिल रहा है. तो दिस इज नोन एज चाहर गार्डन. ओके, नेक्स्ट इज गार्डन्स, टॉम्स एंड फोर्ट्स.
So, under the Mughals, architecture became more complex. Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, and especially Shahjahan were personally interested in literature, art and architecture. In his autobiography, Babur described his interest in planning and laying out formal gardens placed within rectangular walled enclosures and divided into 4 quarters by artificial channels. अब देखिए, अगर हम मुगल हिस्ट्री देखते हैं, मुगल्स काफी लाइक इंटरेस्ट रखते थे, स्पेशली जो 5 मोस्ट प्रोमिनेंट मुगल रूलर्स थे, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां, वो लिटरेचर, आर्ट, आर्किटेक्चर में काफी इंटरेस्ट रखा करते थे. सो बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इस चीज को मेंशन किया है कि कैसे हमने चाहर बाग को, फॉर्मल गार्डन्स को लेआउट किया, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर प्लेस में हमने कैसे उसको 4 क्वार्टर्स में उसको डिवाइड किया और उसके बीच से जो है आर्टिफिशियल चैनल्स, मतलब पानी जो है निकल रहा है. अगर आप ये पिक्चर देखोगे तो ये इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसे पानी निकल रहा है, लोग यहाँ पे प्लांट्स लगा रहे हैं और इसके बीच से वाटर जो है फ्लो कर रहा है. These gardens were called Chahar Bagh or 4 gardens because of their symmetrical division into quarters. Symmetrical division मतलब एक कोई rectangular है, उसको 4 equal parts में, when we divide that rectangular piece of land into 4 equal parts, that division is known as Chahar Bagh, or that division is so symmetrical, that's why symmetrically इसको built किया गया है. Beginning with Akbar, some of the most beautiful Chahar Baghs were constructed by Jahangir and Shahjahan in Kashmir, Agra and Delhi. ठीक है, अगर देखिए जहांगीर, अकबर और शाहजहां, उन्होंने काफी अच्छे चाहर बाग जो हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल चाहर बाग जो हैं कंस्ट्रक्ट करवाए हैं. कहाँ पे? स्पेशली कश्मीर, आगरा और दिल्ली में. देखिए, कश्मीर में किसने करवाया था? कश्मीर में अकबर ने करवाया था, जहांगीर ने आगरा में करवाया था और शाहजहां ने दिल्ली में करवाया था. There were several important architectural innovations during Akbar's reign. Reign मतलब अकबर के राज में, रूल में. For inspiration, Akbar's architects turned to the tomb of his Central Asian ancestor Taimur. The central towering dome and the tall gateway Pishtak became important aspects of मुगल आर्किटेक्चर, फर्स्ट विजिबल इन हुमायूंस टॉम. अब देखिए, जो हुमायूं टॉम है आपका, ये देखिए, ये हुमायूं टॉम, इस फिगर में हुमायूं टॉम को दिखा रखा है. टॉम ऑफ हुमायूं कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1562 टू 1571. बहुत कितनी ओल्ड, अप्रोक्सीमेटली 500 ईयर्स अगो की ओल्ड ये बिल्डिंग बनी हुई है, ये टॉम्ब बना हुआ है. So there were several important architectural innovations. अब काफी अकबर के रूल के टाइम पे बहुत ही इनोवेटिव जो है आर्किटेक्चरल स्टाइल्स को अडॉप्ट किया गया था. अकबर के जो आर्किटेक्ट्स जो है, इंस्पिरेशन हमें जहाँ देखने को मिलती है, वो जो भी जिस भी चीज से वो इंस्पायर्ड हुए, वो हम टॉम्स के रूप में देखते हैं कि उनके जो तैमूर, उनके एंसेस्टर थे तैमूर, सेंट्रल एशिया से, ठीक है, तो उनके जो भी टॉम्स वगैरह बने हैं, डोम की शेप क्या होती है? ऊपर से कर्व शेप होती है, इस टाइप की शेप होती है. जस्ट लुक एट दिस शेप, दिस इज डोम शेप. ओके, तो सेंट्रल टावरिंग डोम है, बहुत बड़ा सा गेट है, ठीक है, जिसको हम पिश्ताक बोलते हैं. एंड ये जो है मुगल रूल में, मुगल आर्किटेक्चर में हमें देखने को मिलता है. और पहला जो ये विजिबल इंसिडेंट है, विजिबल ये आर्किटेक्चरल स्टाइल है, वो हमें हुमायूं टॉम में देखने को मिला. जस्ट लुक एट दिस इज हुमायूं टॉम. चाहर बाग बना हुआ है, ये देखो, यहाँ पे 1 2 3 4. Now the tomb was placed in the center of a huge formal Chahar Bagh and built in the tradition known as 8 paradises or hushed
बिहिश्त से के नाम से बोला जाता है, 8 paradises, a central hall surrounded by 8 rooms. The building was constructed with red sandstone edged with white marble. Just look at this tomb very carefully. This is Humayun tombs. 8 towers बने हुए हैं यहाँ पे, और 8 paradises भी बोला जाता है इसको, और उसमें रेड सैंडस्टोन से बनाया है, व्हाइट मार्बल से इसमें कारीगरी की गई है। It was during Shahjahan's reign that the different elements of Mughal architecture were fused together in a grand harmonious synthesis. His reign witnessed a huge amount of construction activity, especially in Agra and Delhi. The ceremonial halls of public and private audience, जिसको हमने दीवाने खास ओआम बोला है, were carefully planned. Placed within a large courtyard, these courts were also described as Chihil Sultan और 40-pillared halls. अब देखिए शाहजहां के रूल में अगर राइम में देखें तो बहुत सी मुगल आर्किटेक्चर के काफी हमें नजारे देखने को मिलते हैं, आर्किटेक्चरल स्टाइल्स हमें देखने को मिलती है। They were fused together in a grand harmonious synthesis. उनके रेन के टाइम पे क्या हुआ था, उनके रेन के टाइम पे बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हमें देखने को मिली थी। शाहजहां के रूल के टाइम, रूल जब शाहजहां महाराजा थे, ठीक है, उनके राइम के टाइम पे हमें काफी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज देखने को मिली, स्पेशली आगरा और दिल्ली में काफी पब्लिक एंड प्राइवेट ऑडियंस हॉल्स बने, सेरेमोनियल हॉल्स बनी, और ये सब की जो प्लानिंग होती थी, आर्किटेक्चरल प्लानिंग काफी केयरफुली प्लान के साथ किया गया है। Shahjahan's audience halls were specially constructed to resemble a mosque. अब देखिए शाहजहां का जो ऑडियंस हॉल था उसको एक मॉस्क की तरह, ठीक है, मॉस्क की तरह क्या है, रिजेंबल दिखता है, उसकी तरह बनाने की कोशिश की गई है। The pedestal on which his throne was placed was frequently described as किबला, ठीक है, जो पेडेस्टल, जिस पेडेस्टल में वो बैठते हैं, जो अपनी राजगद्दी में, थ्रोन मीन्स राजगद्दी, जिस राजगद्दी में वो बैठते हैं उसको हम किबला बोलते हैं। The direction faced by Muslims at prayers, since everybody faced that direction when court was in session. जब मुस्लिम्स प्रेयर के टाइम पे जिस डायरेक्शन में बैठते हैं उसी डायरेक्शन में कोर्ट में भी क्या है, कोर्ट के सेशन में सब उसी डायरेक्शन में बैठा करते थे। The idea of the king as a representative of God on earth was suggested by the architectural features. अब देखिए आइडिया कि किंग जो है वो भगवान से कम नहीं है, क्योंकि वो प्रेयर करने के लिए जिस पोजीशन में बैठते हैं, जिस डायरेक्शन में बैठते हैं, उसी डायरेक्शन में राजा के सामने भी वो क्या कर रहे थे, उसी डायरेक्शन में बैठ रहे थे, उसी पोजीशन में बैठ रहे थे। So the connection between royal justice and the imperial court was emphasized by Shahjahan in his newly constructed court in the Red Fort at Delhi. Behind the emperor's throne were a series of petradura. Petradura क्या होते हैं, colored hard stones होते हैं, and that carved into marble or sandstones, creating beautiful ornate patterns. ठीक है, stones को जब हम मार्बल या सैंडस्टोन में बहुत ब्यूटीफुली प्लेस करते हैं उसको हम बोलते हैं पेट्रादुरा। तो पेट्रादुरा इनलेज दैट डिपिक्टेड द लेजेंडरी ग्रीक गॉड ऑर्फियस प्लेइंग द ल्यूट, ठीक है, फ्लूट होगा यहाँ पे। ऑर्फियस जो है ग्रीक गॉड थे, लेजेंडरी काफी, he depicted as the legendary Greek god Orpheus, and पेट्रादुरा उनके थ्रोन में पेट्रादुरा स्टाइल्स को अडॉप्ट किया गया था जो ऑर्फियस के टाइम पे यूज किया जाता था, और ये बिलीव किया जाता था, इट वाज बिलीव्ड दैट ऑर्फियस म्यूजिक कुड काम फेरोशियस बीस्ट अंटिल दे कोएग्जिस्टेड टुगेदर पीसएबली। और ऐसा माना जाता था जब ऑर्फिशियस जब अपनी फ्लूट बजाया करते थे तो गंदे से फेरोशियस मतलब एंग्री से एंग्री पर्सन भी क्या करते थे, वो जब तक शांत नहीं हो जाते थे, मतलब उनको भी वो क्या कर सकता था, शांत कर सकता था।
So the construction of Shahjahan's audience hall aimed to communicate that the king's justice would treat the high and the low as equals, creating a world where all could live together in harmony. So Shahjahan की audience hall में क्या किया गया कि aim to communicate that the king's justice would treat the high and the low as equals, creating a world where all could live together in harmony. इस तरीके से बनाया गया कि उस की कोई भी किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, चाहे वो हाई क्लास का हो, लो क्लास का हो, सबको इक्वली क्या किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा. उनके आर्किटेक्चरल स्टाइल में उनके हॉल में हमें ये देखने को मिलता है. So in the early years of his reign, Shahjahan's capital was at Agra, a city where the nobility had constructed their homes on the banks of the river Yamuna. These were set in the midst of formal gardens constructed in Chaharbagh format. Chaharbagh garden also had a variation that historians described as the riverfront gardens. In this, the dwelling was not located in the middle of the Chaharbagh but at its edge close to the bank of the river. अब देखिए शाहजहां की जो कैपिटल थी वो जब उन्होंने स्टार्टिंग में रूल करना स्टार्ट किया था तो आगरा में थी. एंड उन्होंने जो है काफी अपने घर जो है यमुना के आसपास में काफी घरों को बनवाया था. एंड जो फॉर्मल गार्डन्स थे, जो चहारबाग का फॉर्मेट था, उसको अडॉप्ट किया गया था. काफी रिवर फ्रंट गार्डन भी हमें देखने को मिलता है. चहारबाग गार्डन में रिवर फ्रंट गार्डन भी हमें देखने को मिलता है. एंड इन दिस द ड्वेलिंग वाज नॉट लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द चहारबाग बट एट इट्स एज. अब जो ड्वेलिंग हमें देखने को मिलती है वो मिडल में नहीं देखने को मिलती है बट वो एज में देखने को मिलती है, क्लोज टू द बैंक ऑफ द रिवर. ये देखिए, ये आपका ताजमहल है, ताजमहल के ठीक पीछे यमुना बह रही है. बट जो चाहर गार्डन होता है, देखिए ये चहारबाग है, ये देखिए ये यहाँ पे ये वन गार्डन, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड सेंटर में ये फाउंटेन सा है. तो बट नॉर्मली जो हुमायूं टॉम में देखा गया है, ये सेंटर के साइड में वहां पे हुमायूं टॉम बना हुआ है और बाकी उसके चारों तरफ गार्डन बनाया हुआ है. बट इस स्टाइल में ताजमहल के स्टाइल के चार गार्डन से बना हुआ है कि जो वो रिवर के एकदम पास में क्या है, आपकी जो मेन बिल्डिंग है उसको बनाया गया है. बाकी उसके फ्रंट में क्या है, चार बाग्स को कंस्ट्रक्ट किया गया है. Shahjahan adapted the riverfront garden in the layout of the Taj Mahal, the grandest architectural accomplishment of his reign. Here, the white marble mausoleum was placed on a terrace by the edge of the river, and the garden was to its south. Shahjahan developed this architectural form as a means to control the access that nobles had to the river in the new city of Shahjahanabad that he constructed in Delhi. The imperial palace commanded the riverfront. Only specially favored nobles like his eldest son Dara Shikoh were given access to the river. All others had to construct their homes in the city away from the river Yamuna. Now, देखिए, अब शाहजहां ने क्या किया था, रिवर फ्रंट गार्डन था उनका, रिवर फ्रंट आपका लेआउट था ताजमहल का, और ताजमहल को बहुत ही बड़ा आर्किटेक्चरल अकम्पलिशमेंट माना जाता है. शाहजहां के रेन में जितना भी उन्होंने रूल किया उसमें सबसे बड़ा अकम्पलिशमेंट आर्किटेक्चरल स्टाइल में ताजमहल को माना जाता है. और उन्होंने मार्बल मौसोलियम का यहाँ पे यूज किया गया है टेरेस में. गार्डन जो है उसके साउथ में है, एज जो है मतलब किनारा जो है आपका रिवर के पास है. एंड शाहजहां जो थे बेटा, उन्होंने इस टाइप के आर्किटेक्चरल फॉर्म को डेवलप किया जिससे कि वो जितने भी नॉबल्स या जो है मतलब बहुत ही कम लोगों को डायरेक्ट एक्सेस मिल जा पाता था पानी के साइड में. जो भी इम्पोर्टेंट थे या जो फेवर्ड थे, इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज थे, उन्हीं को क्या है रिवर के साइड में रिवर के साइड में घर बनाने को मिलता था. बाकी सब जो है उन्हें काफी रिवर से काफी दूर उन्हें रोड ऐसा बोला जाता था कि काफी दूर आपको जगह मिलेगी, वहां पे आप घर बना सकते हैं. नाउ जस्ट लुक एट दिस पिक्चर, फिगर 14. Reconstruction from a map of the riverfront garden city of Agra. Note how the garden places of the nobles are placed on both banks of the Yamuna. The Taj Mahal is on the left,
कंपेयर द लेआउट ऑफ आगरा विद शाहजहांबाद इन दिल्ली इन फिगर 15। अब इसमें अगर देखते हैं तो ये ताजमहल है आपका बेटा, और उसके रिवर के दोनों साइड में हमें 4 बाग देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, राइट। और सिमिलरली ये शाहजहांबाद है, प्रेजेंट डे दिल्ली है, ये यमुना नदी, और यहाँ पे जो है जो घर है हमें देखने को मिलते हैं, काफी दूर दूर है लोगों के घर, और यहाँ पे जितने जो इम्पोर्टेंट नॉवेल्स थे उन्हीं के घर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये देखो ये सब 4 बाग के एग्जाम्पल्स है। ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ 4 बाग। देखो छोटे छोटे भी है यहाँ पे। ये 1850 शाहजहांबाद का मैप है। वेयर इज द एम्प्रेस रिंग? द सिटी अपीयर्स टू बी वेरी क्राउडेड, बट डिड यू नोटिस द मेनी लार्ज गार्डन्स एज वेल? सो कैन यू फाइंड द मेन स्ट्रीट एंड जामी मस्जिद? जस्ट दिस इज द जामी मस्जिद एंड दिस इज द मेन स्ट्रीट। ओके, और जो शाहजहां के बेटे थे दारा शुकोर, उन्हीं को देखिए यहाँ पे एक्सेस मिला था। वही बहुत ही जो फेवर्ड थे ना, या फिर जो काफी नियर वंस थे, उन्हीं को मिलता था एक्सेस। तो दारा सिखों को मिला था रिवर में एक्सेस, और बाकी सबको जो है रिवर से काफी दूर घर बनाने पड़ते थे उन सबको। So now this is the last topic of this chapter. Just look at this region and empire. As construction activity increased between the 8th and 18th centuries, there was also a considerable sharing of ideas across regions. The traditions of one region were adopted by another. In Vijayanagar, for example, the elephant stables of the rulers were strongly influenced by the style of architecture found in the adjoining sultanates of Bijapur and Golconda. अब देखिए रीजन एंड एम्पायर में जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है 8 से 18 सेंचुरी में काफी इंक्रीज हुई है, काफी उसमें चेंजेस भी हमें देखने को मिला है। जो आइडियाज थे एक जगह से दूसरी जगह हमें देखने को मिले हैं। ट्रेडिशंस जो हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रेडिशंस को भी अडॉप्ट किया गया है। एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो विजयनगर जो है वहाँ के जो एलिफेंट स्टेबल्स हैं, स्टेबल्स मतलब कि जहाँ पे जो एलिफेंट का घर है, ठीक है, जहाँ पे एलिफेंट को रखा जाता है, जो रूलर्स के एलिफेंट स्टेबल्स थे वो काफी इन्फ्लुएंस है किस स्टाइल से? जो सल्तनत से, बीजापुर के सल्तनत से, गोलकोंडा के सल्तनत से, वहां का जो आर्किटेक्चरल स्टाइल था वहां से काफी इन्फ्लुएंस हुआ है। In Vrindavan near Mathura, temples were constructed in architectural styles that were very similar to the Mughal palaces in Fatehpur Sikri. मुगल पैलेसेस जो फतेहपुर सिकरी में मुगल पैलेसेस बने हुए थे, वहां का जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है वहां से काफी इन्फ्लुएंस होके वृंदावन के जो टेम्पल्स हैं उनको बनाया गया है। The creation of large empires that brought different regions under their rule helped in this cross-fertilization of artistic forms and architectural styles. Mughal rulers were particularly skilled in adapting regional architectural styles and the construction of their own buildings. Mughals को ऐसा माना गया है कि वो काफी उनकी जो adapting skills हैं वो काफी अच्छी skills हैं, और जो ये different areas से जो artistic styles को, architectural styles को adopt करते हैं, काफी influencing है वो। In Bengal, for example, the local rulers had developed a roof that was designed to resemble a thatched hut. ठीक है, अब थैच्ड हट क्या होता है? देखिए ये वाला जो एरिया देख रहे हो ना, ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो, दिस इज लाइक थैच्ड हट। तो बंगाल में जो रूफ बनाया गया था, जो रूफ स्टाइल बनाया जाता था, वो इस तरीके से बनाया जाता था कि जो रिजेंबल करता था, किससे रिजेंबल करता था? थैच्ड हट से रिजेंबल करता था। द मुगल्स लाइक दिस बंगला डोम so much that they used it in their architecture. ये जो बंगला उनको just like this, ठीक है, उनको ये स्टाइल बहुत ही ज्यादा पसंद आता था, और उन्होंने मुगल्स को ये इतना अच्छा लगा कि उन्होंने अपने आर्किटेक्चरल स्टाइल में इसको अडॉप्ट किया। द इम्पैक्ट ऑफ अदर रीजन्स वाज आल्सो एविडेंट इन अकबर्स कैपिटल एट फतेहपुर सिकरी। मेनी ऑफ द बिल्डिंग्स शो द इन्फ्लुएंस ऑफ द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ गुजरात एंड मालवा। अब देखिए
अदर रीजन्स कैपिटल जो अकबर की कैपिटल थी फतेहपुर सीकरी, उसके वहां मेनी ऑफ द बिल्डिंग शो द इन्फ्लुएंस ऑफ आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ गुजरात एंड मालवा। गुजरात और मालवा से हमें काफी जो आर्किटेक्चरल स्टाइल्स है वो वहां से काफी अडॉप्ट की गई है, काफी इन्फ्लुएंस होके वहां से अकबर के कैपिटल फतेहपुर सीकरी में जो है बिल्डिंग्स बनाई गई है। इवन दो द अथॉरिटी ऑफ द मुगल रूलर्स वांटेड इन द 18th century, the architectural styles developed under their patronage were constantly used and adapted by other rulers whenever they tried to establish their own kingdoms। अब देखिए मुगल्स जो है उनका रूल उनका चल रहा था, ठीक है, जो मुगल रूलर्स का जो अब अथॉरिटी है वो वेंड आउट हो गया था, मतलब खत्म हो गया था, 18th सेंचुरी तक खत्म हो रहा था। सो जो आर्किटेक्चरल स्टाइल्स उनके अंडर में, उनके पैट्रोनेज के अंडर में जो डेवलप हुई है वो रूलर्स ने काफी अडॉप्ट की है। इवन वो जब भी अपना किंगडम स्टैब्लिश करते थे तो मुगल आर्किटेक्चरल स्टाइल्स को काफी उसमें एप्रिशिएशन मिली है। So this is figure 17. Decorated pillars and struts holding the extension of the roof in जोधबाई पैलेस in फतेहपुर सीकरी। ये जोधबाई पैलेस है और वहां पे देखिए इस टाइप का जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हुआ है, पिलर्स को कैसे डेकोरेट किया गया है स्टोन से ही कार्व आउट करके। These follow architectural tradition of the गुजरात रीजन। ये जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है ये गुजरात रीजन से अडॉप्ट किया हुआ है और उस इन्फ्लुएंस गुजरात रीजन के आर्किटेक्चरल स्टाइल से इन्फ्लुएंस होके इन्हें बनाया गया है। Okay, so your today's homework is you all are supposed to read this portion, churches that touch the skies, ठीक है। बाकी हम उसके बारे में चलो एक बार रीड कर लेते हैं। After that read this chapter very carefully and if you face any problem do let me know। अब देखिए churches that touch the skies। From the 12th century onwards attempts began in France to build churches that were taller and lighter than earlier buildings। This architectural style known as Gothic was distinguished by high pointed arcs, use of stained glass, often painted with scenes drawn from the Bible, and flying buttresses, tall spires and bell towers which were visible from a distance were added to the church। अब देखिए ये जो है चर्च का स्टाइल है, बिल्डिंग्स उन्होंने अब 12th सेंचुरी से उन्होंने बहुत ही लंबे लंबे बिल्डिंग्स बनाना स्टार्ट कर दिया था। बिल्डिंग काफी टॉल है, लाइटर है और इस टाइप का जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है इसको क्या है, गॉथिक स्टाइल बोला गया है। पॉइंटेड आर्क्स हमें देखने को मिलता है, स्टेन्ड ग्लास देखने को मिलते हैं और पेंटिंग्स देखने को मिलती है। एंड पेंटिंग्स में नॉर्मली जो सीन्स, बाइबल के सीन्स को ड्रॉ किया हुआ है और यहाँ पे बेल्स भी लगाई जाती है, बेल टावर्स बनाया जाता है, टॉल स्पायर्स बनाए जाते हैं जो हमें दूर से ही देखने को मिल जाते हैं। एंड वन ऑफ द बेस्ट नोन एग्जांपल्स ऑफ दिस आर्किटेक्चरल स्टाइल इज द चर्च ऑफ नोट्रे डेम इन पेरिस। नोट्रे डामे, पेरिस में नोट्रे डामे एक चर्च है। इस आर्किटेक्चर, ये जो पिक्चर आप देख रहे हो नोट्रे डामे की है, which was constructed through several decades in the 12th and the 13th century। ये 12th century 13th century में बना हुआ चर्च है। Okay, so class, go through this chapter and if you face any problem do let me know। And I already send you the PDF or exercise PDF of this chapter. Go through it and if you face any problem do let me know। Bye bye, take care।